Okay, in the microeconomics, we're supposed to start from this point. Earlier, we had covered 5 M's and micro environments key factors. So let's just revise quickly what we covered in the earlier session. So within the micro environment, which is under the macro, we have input, organizations, output, and consumptions, which essentially reflects this micro environment model, because we have customer and supplier. Of course, for any company, there are two players, which are customers and supplier, for which reflects demand and supply. We also have intermediaries who provide the logistics, and competitors, of course. The firm represent the employees, their skill set, organizational structure, the culture, all the elements for the corporates or the company. And finally, we should also remember there are interest groups who are essentially any other stakeholders who are concerned with the organization. And these are the groups or the factors which reflects here in supplier, customers, competitors, intermediaries, and stakeholders. So the microenvironments player are converted into this list: supplier, customer, competitors, intermediaries, and stakeholders. And eventually, they play part somewhere in providing input, organization, output, and consumptions. We also talked about the 5 M's: material, money, man, machine, and management, and how they are leveraged by people, objective, structure, and management. So with this, this four concept that there are four factors in the organization, and they are instrumental for the company to become competitive. So this concept was given by Mullins in 2005. So it's a people of objective, structure, and management. This is these are four factors which drives the entire organizations and its ability to succeed. The output and consumption elements of our diagram outline that the process is ongoing, and that once something is created by the organization, it is passed on. So basically, overall, all these four elements and the 5 M's drive something called customer's value proposition. Customer value proposition is the total value that the customer, client, your buyers of the organization's product and services, they derive after buying the goods. So in a simple word, the customer's value proposition is how much benefit that they get if they buy your goods or service. As simple as that. So it could be based on relative performance as well as the price. So how we judge the value? There is another term quite popular in the performance management and in economics called VFM, value for money. Okay, so how do we perceive, how do we judge the value for money? So this is typically depending on two aspects: one, relative, and another one is absolute factor. So relative factor is when a buyer compare your product or services with the competitors offering. So they will just try to judge that, oh, okay, I got a little bit more value or worse value than the competitors of the same firm could have provided. Okay, because you compare. It's just like in anything that you go for the shopping and you compare the quality of the product. The second is, given the price, how much value is provided by this product or these services. So
Price can be an element where if you think that the relative performance, there's no relative performance, the performance is the same, but the price can also be different and it can drive the value proposition. So it could be based on relative performance and price or either of that. Let's say one case study here. Are you able to see the screen? So in this case study, there is a Premier Motor and it has all the best resources available. Management and the organizational skill set can produce exceptional cars ever designed. Now, with this, it seems that the company should be highly successful. Since they are based in Mongolia, and it is not really the most richest country, it is economically not very strong, so their customer base is quite low. Also, the transport to other part of the world would be very expensive here on the relative scale. So basically, those who are very very wealthy, exceptionally wealthy, they buy the car, and for rest of the potential, it is rest of the population, it is very expensive. Now, that is a macro level analysis. In the micro, which is very industry based and immediate environment that concerns the organization most, in the micro environment, the lack of too many customer is a massive disadvantage, because the within the high performance sports car, the Premium Motor could have a number of competitors, and they may not produce great car, but they can still produce affordable and large number of cars. So the problem is that there are not enough customers, there is no enough demand. At the macro level, there is a lack of prosperity, there is a lack of money, and that lack of money is driving the micro level demand, which is also very dry. When there is a turbulent economic situation, that demand also further dries up. So though Premier Motor can really produce a high end, luxurious, and a high performing car, even sports car, but ultimately there's no demand for this. So the book is saying that this is a fictitious case study, but it shows us how macro and micro level demand supply can affect the business. The concept of market, this is often a very much debated topic. What is the market? Who are the market forces? How the prices should be determined in the market? Whether market should be intervened or not. So the question is, what do you think? If the supply and demand is not in balance, should one intervene and kind of make it more reasonable? If the prices are going too high, should government or any regulators intervene and make the price reasonable, or should government leave it on the market? How it should be managed? Do you believe in the market driven price, or you believe in regulation driven price? Do you really think people can judge the price themselves, how much they should pay for something, or it should be the government who should help? Do you really think that the corporate or the companies can overcharge the customers and buyers, and they need to be protected?
I mean, the customers and the buyers should be protected. So these are the fundamental questions about the market. And if we understand this question itself, that will help to understand the market, how the supply and demand works. So essentially, what is market? Market is basically any player who buys goods and sells, and those players who sells goods and services. So market consists of the buyers and sellers from both sides, and in that process, the goods are exchanged for money. And market is supposed to provide enough demand and the supply, and it should be fair. It should always be free from monopoly, so that the market forces can work properly. Market forces stop to work, like price and demand curve, are not very efficiently working when there is a monopoly. So monopoly means when there is the kind of rule of one in the market. Do you know what is oligopoly? Have you heard of oligopoly? So just like monopoly is for ruled by one, oligopoly is when it is ruled by few. And we have seen in many markets this exists. So long as it does not become very unfair, it even continues. Okay. So price theory in the market. When goods or services are when a good or services are useful as well as scarce, then there is a price. The such definition is coming from the fact that if you have, say, plenty of air and or plenty of water, you don't pay a price, right? And we are not saying they are not useful, they are still useful, but we don't pay the price. On the same time, if something is useful but they are not in scarce, so we can just continue to use this and we don't have to pay. So there will be no price. But if something is just scarce but not useful, again there will be no price for that. So the price theory says anything should be useful as well as scarce in order to derive a price in the market. And there are some other terminologies like utility. They are simply the English word for what we know as, use or benefit. If something provides us economical or any productive benefit, productive use, it is called utility, right? In some simple word. Total utility means something providing the total satisfaction, total usefulness, total benefit. Then it is total utility. Marginal utility means that the satisfaction coming from the consumption of additional unit of good. If you forgo the additional unit, you forgo the partial satisfaction as well. So marginal utility means like how much benefit and how much productivity you get if you consume just one additional unit of good. So it's just like imagine you are thirsty, right? So it's a typical summer day and you are thirsty. You had one glass of water. Okay, so remember this concept. It is very important. You had one glass of water, a very simple phenomena, and it was like getting the life.
you really liked it. Now somebody asks you for offer you another glass of water. You might still go for this, but it will not be as useful. Okay, the benefit and the usefulness, or your craving for the additional glass of water will be far less than the first glass of water. Now you can see the marginal utility in the play. Same glass of water, same content is not giving you the same utility, same benefit, right? Because the marginal utility, the additional benefit, the additional utility that you are going to get from another glass of water is lower, and that's why it's called marginal utility, like just additional utility or additional benefit from consuming one more unit. So it is a marginal utility. If you drink another glass of water, that's what you get, right? Another thing that you'll notice, after having two glasses of water, somebody asks you for the third, and you might just say no, because then you don't have any marginal utility left for the water. So what do we learn? Marginal utility is a downward sloping curve. It goes down as you consume more the quantity. Okay. So marginal utility goes down as you consume more and more of the unit. Then the term is satisfaction foregone. If you choose not to consume any other unit, it is said that satisfaction foregone. So you have chosen not to consume and the additional unit and the satisfaction as well. So these are kind of very general English term which is used in the economics. Some of the underlying assumptions in economy is that all the consumers are rational. What is the meaning of rational? So the rationality is when one is supposed to behave logically. Oh, someone is not speaking. So rationality means when someone chooses to apply judgment, logic, that's the meaning of rationality. And in economic or any trading situation, the participants are supposed to behave rationally. That means they will go for lower price than the higher price. They will try to consume more goods than less. In a way, it also assumes consumerism, right? It also says that the market participants can easily switch from one product to another product. People can explore, and people can easily change their buying pattern. If we apply some of the behavioral economics theories, behavioral finance theory, it may not be accurate, because the behavioral finance and behavioral economics says that people are not rational. However, most of the economics theories are built on the notion that consumers are rational. Consumers think logically. So there is a divide here. The latest theory says that consumers don't behave rationally, but all the other economic theories, especially those which were built 10 years ago and prior to that, that believes that that the market participants, the buyers, sellers, are rational. So if people want to have the lower price, they want to consume more goods, they can switch from product A to B, and people can also compare the price or the utility. Like if commodity A is better than B and B is better than C, that also means commodity A is better than C or preferred to C. Again,
this notion or this principle is also questionable. However, for most of the economics theory, we just need to know that consumers are rational and they behave rationally. Somewhere this could be the reason why many economics theories also do not work in reality, because it is based on the rationale that consumers are rational, okay, which is not in many cases accurate. Consumers are more emotional than rational. So since everyone try to consume more, they try to maximize the total utility, like total benefit from the product or services for a given price or for the given income. So if somebody has 10,000 or 50,000 worth of disposable income, they will try to maximize their benefit and utility. In that sense, yes, it is correct, because people will try to get maximum out of their money, whatever the amount is left to spend. The other theory is that people decisions are also driven by the fact that if they try to buy good A, they will also compare how much they can get for good B, or how beneficial is good A over good B. So comparison, right? The mind works in a comparative way. They always try to compare the price or the benefit, or maybe both. So often when we go into a market, what do? Either we focus a lot on the price and we compare the prices of the goods, especially when goods are very similar, right? When they are not very similar, then we look at the quality. So these are the two parameters where most of the buying decisions are hinging. Of course, if only if the buying power is there. If the buying power is there, we need the goods, then a lot of decisions are based on the benefit as well as the price. In the economics, we talked about that demand determines the price. Of course, together with supply, demand and supply is the determinants of the prices. Why demand is a key term? Because demand represents the utility. Without utility, there will be no transactions, because the price itself is derived when the resource is useful as well as a scarce. If any of the two criteria is not met, there will be no demand and there will be no price. Now, the demand and supply theories are supposed to be based on willing buyers, free buyers, and able buyers. So buyers should be able to buy something, otherwise all the debates are futile. Buyers should be able to buy, they should be willing to buy, they should be fully informed as well. So in the market condition, buyers are supposed to be informed as well. Only then their buying decision is accurate and the economic model will work. So this entire assumptions and the theories have resulted into a demand curve. Okay, so what is the demand curve? We need to understand this properly, because then we will understand demand and supply graph and how the price is determined. Okay, one thing that we have noticed always in the typical market condition, that as the demand for some, or as a price for something is reduced, the demand grows. Again, applying certain assumptions, right? So what happens, and why the reduction in price increases the demand? We'll talk about that one next. So first thing happens that, like as we can see here in the table, price per kg though, so the dollar price is
reducing from 6 to 5 or 5 to 4, and look at what happens in the quantity demanded. It goes from 1 kg to 2.75 to 4.5, 6.25, 8, etc. So as the price goes down, the demand also increases. Now, I can understand that you can think that, oh, it does not always happens like this, because people have to eat, right? If there is a demand of 6 kg rice in a house or in a village, people are somewhat going to buy, you know, 6 kg or 9 kg. If there's a demand for that much in the house, people cannot just choose to remain empty stomach. That is quite true, because demand and supply also depends on what kind of product you're talking about, right? So I just want to provide the context so that there is no confusion in the exam, that demand increases as the price falls, but that also has certain assumptions and restrictions as well. Like generally it works for elastic goods and services. Now I want to bring a concept of elasticity, though it is not I think in the book or the theories, basically, yeah, in any of the question here or any note, but it is important that you understand the elasticity. The elasticity means that if I increase the price of medicine, people can still buy this. So medicine is considered inelastic, like it is not rigid, it is not flexible, it is fixed. So if you increase the price, the demand will still remain here, it will not go down, it will remain as it is, because it is medicine, it's life-saving drug, right? In the same now opposite situation, if someone say increase the price of tea, right? So the price of tea is increased, then what happens? People might reduce the consumption eventually. It will not be zero, it will not be a massive drop, but people can respond by reducing a little bit of the demand in the tea. So always remember, while I say, and the theories are there to suggest that demand curve suggests that demand increases with the drops in price. In other words, demand and the price is inversely proportional. They work in opposite way. Price grows, demand falls, right? And price falls, demand grows. So remember that it is true only for elastic product. Elastic means, or elastic goods and services. Elastic means when people are free to respond, when people have the choice to respond, when the people are not rigid about this. We know that in general Indian economy, education is something that is kind of considered sacrosanct, very important. Even if the economy is bad, people will try to continue their education and studies. It will not be impacted drastically even with the bad economy. So what do you think the education is in the setup of an economy? It is relatively inelastic. It is not completely inelastic, because elasticity also has a range, and in one corner you have completely elastic product, like a little drop in price, a quick proportionate increase in the demand. So that means completely elastic. Elasticity 1. Elasticity 0.5, when you reduce the price and the demand grows by 50%, right? It is not fully elastic, but it is a little bit of elastic. Inelastic situation, a completely rigid situation, when the price is dropped, demand will not grow, or price grows, demand will not be impacted. Demand will not reduce. Why? Just like medicine,
There are certain medicine people take regularly, right? For say sugar, some people take the medicine for that on regular basis. Blood pressure, hypertension, and cholesterol, people consume that on regular basis. If the price goes up or goes up, there will be hardly any direct impact on the demand. So those medicines are inelastic. On the other hand, suppose that the price of multivitamins grows, what will happen? There will be a very likely there will be a proportionate reduction in the demand as well if the price goes up. So while we are talking about the demand curve, demand schedule, we should also understand there is an element called elasticity, which can make the demand schedule, little unexpected, depending on whether the good or service is elastic or not. So the demand schedule and demand curve. Okay, we can show this schedule graphically with price on the y-axis and the quantity demanded on the x-axis. So what is y-axis and x-axis? So there's something that relates to, again, mathematics or statistics classes, etc. in the primary or secondary education. Generally, the y-axis, what is the y-axis? This standing line is called the y-axis, and this slipping or horizontal line is called x-axis. In the economic model, mostly the quantity for demand curve is quantity is shown on x-axis and the prices are shown on y-axis. So as you can see, when the price was $6, right, demand was only 1 unit. Price drops to $4. Now see the required line. You need to study the graph properly. So for $4 of price, so you need to follow this line where the $4 is going on this graph. So this B to E, this dot B to E, this is the demand curve. Okay, this line is called demand curve. From here all the way to this point on which B and E falls are called demand curve, right? So when the price is 4, you need to just follow the line. Okay, it goes here. And if you follow the price here, if you look at the point, this one, you can just drop imaginary stone. Just drop an imaginary stone. It falls straight on the x-axis and see where the demand is. Here is the quantity. 4.5 unit of quantity is consumed when your demand, when your price comes down from $6 to $4, right? So price comes down from $6 to $4. How much your demand grows? See, now go back to the demand curve again and find out the right point. So draw a line for $6. Find out the representative line on demand curve, which is point B, and just drop a stone from point B to x-axis and see where it falls. It is going down and down and down. Here 1 unit is consumed, 1 kg is consumed when price is $6. When price goes down to 4, here on B to E, this is the price on demand curve, and then just drop an imaginary stone from this point to x-axis. See, it is 4.5 unit. So what do you observe? When the price goes from 6 to 4, the quantity of consumption is from 1, it goes to 4.5 kg. So that means the quantity is growing when the price is dropping. Now imagine price further drops from 4 to 3. The representative point, again, draw a line from 3 which meets on demand curve. Here, this is your demand point for $3. This is a demand point.
Again, drop an imaginary stone from here down on x-axis. So it is something like 6.25 kg. So from 4.5, the demand grows to 6.25 now. Okay, quite interesting. One more thing that we need to understand here, that when the price is dropping, okay, from 6 to say 4, okay, from 6 to 4, how much price is dropping? 33%, right? So just look some analytical in an analytical way. It will help you understand and grasp the concept very well. Something which is not also in the book only, but you need to analyze and understand it to get a good grasp of the topic. When the price drops from 6 to 4, like $2 on from 6, it's like reduction of 33% in the price. And remember this, 33% reduction in the price. Okay, now how much increase in the quantity? From 1 kg, it has gone to 4.5. So an increase of how much? 4.5 times. Now look at the similar reduction in the price again. From 4, it goes down how much? 33%. So from 4 to 33% is little difficult because it is not kind of divided accordingly. So let's imagine that it goes down to somewhere say 2.8, right? 2.8, 2.75 will be like 1/3 drop in the price. Okay, just I'm trying to do a one-third drop in the price second time. So first time we know how much it impacted the quantity. Now let's do another drop of 1/3 in the price and see how much quantity is impacted. Okay, that's my objective. So from 4, it goes down to something say 2.75, 1/3 drop in the price. So how much was quantity at 4? 4.5. If it goes to 2.75, and I will draw a line here, and that line will be somewhere meeting around 7. So 6.8. So the consumption is 6.8. Okay. So when you increase, when you decrease the price from 4 to 2.75, basically your consumption is further increasing from 4.5 to 6.75 here, somewhere here. But did you notice something? The increase in the quantity consumed is not in the same ratio. The price is going down and down by the same ratio. If you reduce the price by the same multiples or the same unit, your increase in the demand is not in the same unit. Am I clear here? It's an important concept. Bhaiya, please repeat. Which portion Can't understand. or everything? Everything. Yeah, the price and the quantity, both. Okay. So the price was at $6. Okay. And the quantity consumed was 1 kg at $6. You reduce the price. Okay. So let's reduce it by 1 unit only. Or let's repeat the example. So from 6 to 4, how much is the drop? 33%. Yeah. If you reduce from 6 to 4, 33%, how much increase in the quantity?
quantity was 1 kg, right? Here 1 kg when the price was at 6, so 1 kg. When the price is at $4, the quantity is 4.5 kg. How much it grew by? You see, from 1 kg it grew to 4.5. मतलब 1 kg से था, 1 kg से 4.5 kg हो गया। कितना प्राइस कम होने पे? 1/3, 33% मैंने प्राइस कम किया। क्वांटिटी जो है 1 kg से 4.5 kg पे पहुंच गया। बहुत तेजी से बढ़ गया क्वांटिटी, डिमांड। ठीक है। अब नाउ इफ आई एम ए शॉपकीपर, आई विल बी ग्रीडी। मुझे तो अब लालच आ जाएगा कि थोड़ा सा और कम करके देखते हैं कितना तेजी से बढ़ता है प्राइस, है ना। मैं कहा कि ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक और प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो प्राइस है उसको $4 जो है, उससे क्यों नहीं हम वापस इसको लाते हैं से 33% फिर कम कर देते हैं। अब यहाँ पे 33% का वो सेक्शन नहीं बनाया हुआ है, बट लेट्स इमेजिन, कल्पना करते हैं कि ये कहाँ पे जाएगा। अगर हम इसको 33% फिर नीचे ले जाए तो ये आएगा कहीं पे 2.75 पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि हमने 33% का रिडक्शन किया था पहले, फिर से 33% का रिडक्शन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये कितना कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा कहीं ग्राफ 1/3 का रिडक्शन पे 2.75 के आसपास। ठीक है, अब अगर ये 2.75 पे लेके जाते हैं तो मालूम है कैसे निकालते हैं डिमांड उसका? एक एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से जाएगा इस पे, स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए डिमांड कर्व पे। ये डिमांड कर्व है, ठीक है, ये जो दिख रहा है B to E, यहाँ पे है डिमांड कर्व। और यहाँ से फिर इस पॉइंट से हम एक स्टोन को इमेजिन करेंगे गिरा एक्स एक्सिस पे, तो ये आएगा करीब करीब 7 के आसपास। तो 6.8 kg का कंजम्पशन हुआ हमारा। इफ हम लोग प्राइस को 1/3 और गिरा दें तो हमारा कंजम्पशन फिर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 4 पे था ना, 4.5 kg था ना। जब हम 1/3 प्राइस कम किए तो कितना जाएगा? 4.5 से ये पहुंच जाएगा 7 पे या 6.8 पे, राइट। तो क्या हुआ है? कंजम्पशन बढ़ा, फिर बढ़ा। लेकिन डिड यू नोटिस एक चीज? उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। पहले क्या हुआ था? 1/3 आपने रिड्यूस किया प्राइस, 1 to 4.5 kg पहुंच गया डिमांड। फिर से 1/3 रिड्यूस किया तो 4.5 से कितना पहुंचा? 6.8 पहुंचा। ठीक है, भूल जाओ कि ये 4.5 गुना बढ़ेगा इस बार तो ये डबल भी नहीं हुआ, 9 पे भी नहीं पहुंचा। 4.5 का डबल क्या होता है? 9, उतना पे भी नहीं गया। ठीक है, कितना बढ़ा? जस्ट 50% बढ़ा करीब। वी रिड्यूस द प्राइस बाय 1/3 और इस बार केवल 50% ही बढ़ा। ठीक है, सो कहने का मतलब जब हम प्राइस कम करते जाएंगे तो जो डिमांड था ना, बढ़ता जा रहा था तेजी से, अब वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट है। ये क्लियर है? समझ में आया? आई कैन रिपीट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हुआ क्या है अल्टीमेटली? 6 to 4 अगर हम डॉलर ड्रॉप करते हैं तो डिमांड बढ़ेगा 1 किलो से 4.5 किलो। ठीक है, वापस अगर हम लोग उतना ही परसेंट कम कर दें, 33%, हम 4 से 2.75 पे लेते हैं ना डॉलर प्राइस को, तो ये 4.5 kg जो है कंजम्पशन, अब इस टाइम पे वो 4.5 गुना नहीं बढ़ेगा, 17-18 नहीं पहुंचेगा। इस बार कितना पहुंचेगा? जस्ट 6.8 kg। मतलब उतना ही प्राइस कम करते जाइएगा, डिमांड जो है उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, डिमांड जो है कम तेजी से बढ़ेगा। अब सो हर यूनिट के रिडक्शन पे डिमांड जो है उतनी फास्ट नहीं रहेगा। ठीक है, ये एनालिसिस इसी के लिए दिखाया था।
एक चीज ये नोट करना होगा और भी, कि अगर हमारा डिमांड जो है कर्व है यहाँ पे डिमांड कर्व कैसा है, इसको क्या कहेंगे, ये डिमांड कर्व है। ओके, याद रखना है ये बात, ये है डिमांड कर्व। ये कैसा है, स्ट्रेट है, ठीक है। ये डिमांड कर्व कैसा है, इसे देखिए, एक स्ट्रेट नहीं है पूरी तरह से, ये डिमांड कर्व स्ट्रेट नहीं है, ये बेंट है, झुका हुआ है। किधर झुका हुआ है, सेंटर की तरफ। ओके, एक कर्व है इसमें, नीचे की तरफ सेंटर की तरफ ये झुका हुआ है डिमांड कर्व, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मालूम है, इफ इफ यू रिड्यूस द प्राइस, ठीक है, तो जो डिमांड में इंक्रीज होगा, फॉर एग्जांपल 6 to 5 प्राइस करिए, डिमांड में जो इंक्रीज है ना 1 to 2, ये बहुत फास्ट होगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन रहे, उसके कंपैरिजन में, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता उसके कंपैरिजन में, ये जब ये सेंटर की तरफ झुका हुआ है, सेंटर की तरफ, ये ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई इसके ऊपर बैठा हुआ है, या बच्चों का वो स्लाइडिंग स्लाइडिंग सिस्टम बना हुआ है। तो जब ये स्लाइड की तरह बना होता है, ये झुका हुआ है अगर, तो उस केस में जब प्राइस का रिडक्शन होगा फ्रॉम 6 to 5, या बेसिकली, तो क्वांटिटी का रिडक्शन काफी फास्ट होता है। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो उतना फास्ट नहीं होगा। जब ये सेंटर की तरफ झुका होता है तो रिडक्शन प्राइस में होने से क्वांटिटी का जो इंक्रीज होगा वो फास्ट होता है रिलेटिवली। समझ आया? हम लोग को मालूम है कि स्ट्रेट लाइन होता है तो प्राइस नीचे जाती है, क्वांटिटी बढ़ता जाता है, ठीक है। ये हर जगह होता है, हर किसी चीज में, ठीक है। मार्केट में जूस है, खाने की चीजें हैं, खास करके फ्रूट्स हैं, जैसे जैसे प्राइस कम होता है लोगों का डिमांड बढ़ता जाता है, राइट। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है समझने में। वो क्यों होता है, वो होता है स्ट्रेट, इस लाइन के कारण। जब डिमांड लाइन पूरी तरह से स्ट्रेट हो, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गया। लेकिन डिमांड लाइन कभी कभी पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं होता है, वो इस तरह से थोड़ा सा झुका होता है, इस तरह से कर्व रहता है बीच में। और कर्व रहने के कारण ऐसे एक कर्व हो सकता है। और जब कर्व क्रिएट होगा तो वो 6 to 5 आने पे 1 to 2 जो क्वांटिटी का डिमांड है बहुत तेजी से बढ़ता जाता है। ये हो सकता है कि 6 to 5 आप रिड्यूस करें प्राइस, और डिमांड जो है सडनली 1 to 3 पे पहुंच जाए, 3 to 6 पे पहुंच जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। 6 पे डिमांड कितना था, 1, 4 पे करते हैं। 4 पे कितना हुआ डिमांड, $2 कम करने पे 3 पे आ गया ना, 1 से 3 पे आया, ओके। अब 4 पे था, 4 से 2 पे लाते हैं, डिमांड कहाँ गया, 4 से 2 आने पे 3 जो था डिमांड वो 6 पे पहुंच गया, ठीक है। तो काफी तेजी से डिमांड मूव हुआ, क्योंकि ये ग्राफ जो है स्लाइटली बेंट है, ठीक है। अगर आप यही प्राइस देखिए यहाँ पे 6 to 4, 6 पे कितना था, 1 kg, 4 पे कितना है। मैं ये कंपेयर क्यों कर रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन जब रहता है यहाँ पे डिमांड कर्व, तो कैसे हमारा रिस्पॉन्स आता है क्वांटिटी के ऊपर। 6 यूनिट अगर कंजम्पशन हो रहा है, 6 to 4 पे आ गया, तो 1 kg जो है हमारा 4.5 kg तक पहुंच गया डिमांड। 1 kg राइस जो था 4.5 kg अब खरीदा जा रहा है, ठीक है, इसलिए कि प्राइस $2 कम हुआ, ठीक है। अब फिर से एक बार चेक करते हैं, 4 से इस बार $2 पे लेके आते हैं, $4 से $2 पे आ गया प्राइस। अब कितना बढ़ना चाहिए, $4.5 था 4 पे, और 2 पे कितना हुआ, लाइन फॉलो करते हैं, लाइन फॉलो करते हैं, यहाँ पे ई पे आया,
ई पे एक स्टोन ड्रॉप करते हैं, ये एक एक्स एक्सिस पे आया, तो 8 किलो। अच्छा, तो जब हम $4 रखे थे तो कंजम्पशन था 4.5 किलो। जब $2 हो गया तो इसके लिए कंजम्पशन कितना हो गया? 8 किलो। तो इसका मतलब कि 4.5 से 8 किलो बढ़ गया कंजम्पशन। ठीक है, कितना बढ़ा, कितने किलो? 3.5 किलो बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे इसके पहले कितना बढ़ा था? 1 से 4.5 पे गया था, राइट? आर यू स्टिल विथ मी? 1 to 4.5 गया था, कितना बढ़ा? 3.5 किलो बढ़ गया। हमने जब 2 यूनिट कम किया था, यहाँ पे हमने जब 2 यूनिट कम किया तो कंजम्पशन कितना बढ़ा? 1 से 4.5 हो गया, मतलब 3.5 किलो। फिर 4 से 2 यूनिट पे कर दिया प्राइस, $2 और कम किया मैं, कितना बढ़ा? 4.5 से बढ़ के 8 किलो पे पहुंच गया। कितना बढ़ा? फिर से 3.5 किलो बढ़ गया। इसका मतलब जब $2 हम कर रहे हैं तो जितने डॉलर हम प्राइस कम कर रहे हैं उतना क्वांटिटी बढ़ रहा है। ये एग्री है? यहाँ पे एग्रीमेंट है कि नहीं है? है ना? है भैया। अगर हम $2 प्राइस कम करें तो उतना ही शिफ्ट हो रहा है डिमांड में। $2 कम करते हैं, 3.5 किलो बढ़ रहा है। फिर $2 कम करते हैं प्राइस, फिर 3.5 किलो बढ़ गया। ठीक है, वो क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ही होता है मैथ में कि सब कुछ उसी अनुपात में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जब भी स्ट्रेट लाइन दिखेगा कहीं भी ग्राफ में, मैथ में, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा रिस्पॉन्स जो है उसी जो है रेशियो में रहेगा। ठीक है, सिमिलर, प्रोपोर्शनेट, उसी अनुपात में रिस्पॉन्स मिलेगा। ये हमारा स्ट्रेट लाइन हमेशा कहता है कहीं भी। लेकिन कभी कभी ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं भी होता है। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो करके ये बच्चों का स्लाइडिंग ट्रैक बन जाए इस तरह से, ये स्लाइडिंग ट्रैक लग रहा है ना, थोड़ा सा सेंटर की तरफ झुका हुआ है, कर्व है इसमें। वो कर्व ये कहता है कि अगर आप प्राइस को 2 यूनिट कम करेंगे तो डिमांड दो जो है हर बार 2 ही यूनिट से नहीं बढ़ेगा, वो हो सकता है बहुत तेजी से बढ़ जाए या कम हो जाए। और ये बदल कैसे? 6 पे था प्राइस, 4 पे आया, 6 to 4। ओके, डिमांड कहाँ था? डिमांड जो है 6 to 4 आने पे 1 केजी से 2 केजी। ठीक है, कितना बढ़ा डिमांड $2 कम करने पे? 2 बता दीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 6 to $4 मैंने किया, $2 कम किया बस। डिमांड कहाँ गया? 1 to 3 3, 2 किलो बढ़ा। ठीक है, वेरी गुड। फिर 4 है, $4 है, इसको अभी $2 और कम करते हैं। ठीक है, पिछली बार कितना कम किया था? 6 to 4 $2 किया था ना, वापस $2 $4 to $2 ला दिए। 2 ठीक है, अब चेक करते हैं डिमांड कहाँ है। डिमांड चेक करने आ गया ना? कैसे चेक करते 6 हैं? पे। हाँ, 2 का ये डॉट लाते हैं, ये डॉट है, और 6 पे आ गया। कितना बढ़ा फिर से बताना? 3 to 6, 6 3 3 केजी 3 बढ़ा। प्राइस कितना कम किए हो? उतना ही कम किए ना, 4 to 2 किए। हाँ। पहले भी 6 to 4 किए थे, $2 कम। फिर से 4 to 2 किए, $2 बढ़ा कम किए। लेकिन इस बार $1 to 3 पहुंचने की जगह सीधे 3 to 6 पहुंच गया। 3 किलो बढ़ गया है इस बार, केवल $2। उतना ही मैंने प्राइस कम किया। पिछली बार $2 का कम किया था तो 1 से 3 पहुंचा था, 2 केजी डिमांड बढ़ा। इस बार फिर से $2 जब कम किया तो 3 to डायरेक्टली 6 पे पहुंच गया, 3 केजी डिमांड बढ़ा। नोटिस किए कुछ क्या हो रहा है? $2 प्राइस कम करने पे डिमांड बहुत तेजी से बढ़ा। और वो क्यों हुआ है मालूम है? इसलिए कि ये जो लाइन है कर्वेचर, ये सेंटर की तरफ झुका हुआ है। इसको कहते हैं कर्व लाइन। ठीक है, लाइन में कर्व है, सेंटर की तरफ झुका है, इसलिए ये जो आपका रिस्पॉन्स है यहाँ पे काफी फास्ट हुआ है। आप प्राइस कम किए, रिस्पॉन्स काफी फास्ट हुआ क्वांटिटी पे। ठीक है, इसको और उल्टा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दें, कॉम्प्लेक्स कर दें इसको और।
देखते हैं एग्जाम्पल क्या कह रहा है। एक सिचुएशन ये भी हो सकता था, अगर इसको थोड़ा और कोशिश करें, और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, यही अगर ग्राफ जो है सेंटर की तरफ झुका हुआ है ना, ये ऊपर की तरफ अगर हो जाता, ठीक है, कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे बन जाता ग्राफ, ऐसे, ठीक है, उल्टा असर होता। आप प्राइस कम कर रहे हैं और डिमांड नहीं बढ़ेगा जल्दी, बहुत स्लो ग्रोथ होगा डिमांड में। यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस कम किए हैं $2 ही, डिमांड तेजी से बढ़ गया। जब ये कर्व जो है ऊपर की तरफ रहता कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे अगर कर्व कर दें हम, तो पूरा का पूरा जो एक डिमांड है वो अलग तरीके से बढ़ेगा, वो स्लो तरीके से बढ़ता है, ठीक है। तो एक चीज जो समझने की जरूरत है यहाँ पे, कि जब कर्व होता है लाइन में, तो डिमांड उसी रेशियो में नहीं बढ़ता जितने रेशियो से आप प्राइस कम कर रहे हैं। यहाँ पे वही डिस्कशन है जो हम लोगों ने किया अभी, ठीक है, 4 to 2 एटसेट्रा। तो इसी पे न्यूमेरिकल है अभी जो हमने डिस्कशन किया है। सो ये जो प्राइस में जो चेंजेस हो रहा है, प्राइस और डिमांड में जो चेंजेस हो रहा है, इसके ऊपर है कि अगर आप प्राइस कम करते हैं और डिमांड बढ़ता है, उसको कहते हैं एक्सपेंशंस। जाहिर सी बात है, एक्सपेंड हुआ डिमांड तो एक्सपेंशन कहेंगे। जब उल्टा होता है, मान लीजिए एक्सपेंशन का उल्टा क्या होगा, जब हम प्राइस बढ़ा देते हैं, 3 to क्या कर दिए, या 4 to 6 कर दिए, 4 to 6 करेंगे तो क्या होगा, जो डिमांड 3 kg था वो वापस भी जा सकता है ना, 1 kg, 3 to 1 kg हो जा सकता है अगर आप प्राइस बढ़ाइएगा 4 to 6। उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। तो एक्सपेंशन भी होता है और कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है जब डिमांड कम होता है, क्यों डिमांड का कम होगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो। बट डिमांड कर्व चेंज नहीं होगा, कर्व वही रहेगा, ठीक है, ये कर्व जो बना हुआ है ये वही रहेगा, ठीक है। आप प्राइस कम या बेशी करेंगे, ऊपर नीचे प्राइस जाएगा, आपका डिमांड जो है मूव होता रहेगा यहाँ पे। तो ये जो हम लोग मार्केट का डिमांड देखे हैं, क्वांटिटी का, ये डिमांड किसी एक कंज्यूमर का नहीं है, ये पूरे मार्केट का है, ठीक है। सो ये जो डिमांड कर्व हम लोग देख रहे हैं, ये पूरे मार्केट के डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। अब सवाल ये है कि ये जो डिमांड सामान के लिए होता है, सर्विस के लिए होता है, वो कैसे डिसाइड कैसे हो रहा है कि कितने केजी लोग चावल ले रहे हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे कहने के लिए बहुत आसान है कि हम प्राइस कम कर दिए और डिमांड बढ़ जाएगा, बट इतना आसानी से नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए रिसेशन है, मंदी आई हुई है अर्थव्यवस्था में मान लीजिए, या कोरोना के कारण सप्लाई में प्रॉब्लम है, सारे शॉप्स में सप्लाई भी नहीं हो रहा है, या लोगों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, प्राइस कम किया गया बट लोगों को ज्यादा चावल खाना पसंद नहीं है, चावल से लोग कह रहे हैं कि बहुत फैट होता है, शुगर बढ़ता है, तो वैसे भी लोग कह रहे हैं कि ठीक है, प्राइस कम भी होने पे हम यूज नहीं करेंगे प्राइस। दूसरा है सप्लाई चेन बंद होने के कारण दुकानों में सप्लाई भी नहीं हो पा रहा है ज्यादा चावल का, ठीक है। तो केवल प्राइस कम कर देने से जरूरी नहीं है कि डिमांड पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए कि डिमांड जो है बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, उसमें से प्राइस एक है, हाउस होल्ड की इनकम क्या है, ठीक है, और मार्केट में क्या कोई और भी प्रोडक्ट है, इस पे भी डिपेंड करता है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, राइट, याद है हम लोग ने एक बार पोर्टर 5 फोर्स में भी ये स्टडी किया था, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी कई बार आता है डिस्कशन में,
मल्टीपल जगह पे इसका भी असर आता है। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन हम यहाँ पे थे, प्राइस 4 था, ठीक है, 4, जहाँ पे ये 3 kg हम लोग राइस खरीद रहे हैं, 4 to 6 कर दिए, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 3 kg से 1 kg क्वांटिटी हो गया राइस का, ठीक है। अब ये 3 से 1 kg हुआ होगा, तो सब जस्ट सोचिए कि क्या लोग 3 kg के साथ 1 kg खाना शुरू कर देंगे चावल? जरूरी नहीं है। प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी कम हुआ, आई एग्री, लेकिन ये भी सोचने की जरूरत है कि कैसे कम हुआ होगा क्वांटिटी। ऐसा तो है नहीं कि लोग 3 kg की जगह 1 kg खाना कम कर दिए होंगे, सीधे 2 किलो कम कर देंगे खाना, 3 kg नहीं है भाई, हम 1 kg ही खाएंगे। एक्चुअली ये हुआ होगा कि लोग सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किए होंगे। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे आपने चावल का दाम बढ़ा दिया, ठीक है, लोग गेहूं की रोटी खा रहे हैं ज्यादा, और गेहूं का प्राइस वही है, ठीक है। अगर जब ये एनालिसिस करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि बाकी सारी चीजों का प्राइस, बाकी सारी चीजों का डिमांड, या बाकी सब चीजों का सप्लाई सेम है, तो आपने प्राइस बढ़ा दिया चावल का, $4 to $6 कर दिया। अब क्या होगा? डिमांड इस कर्व के अकॉर्डिंगली 3 kg से 1 kg पे चला गया, डिमांड कम हो गया। वो कम क्यों हुआ होगा? ऐसा नहीं है कि लोग एकदम से कम कर देंगे खाना, तो इसलिए भी होता है कि मार्केट में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है। चावल आप महंगा करेंगे, लोग गेहूं की बनी चीजें खाएंगे, गेहूं भी मना कर देंगे तो भुट्टे की बनी कुछ और खाएंगे, बहुत सारे और भी अनाज हैं, वहां पे वो लोग फोकस करेंगे। वो भी सारे अनाज आप महंगा कर देंगे तो लोग वेजिटेबल, सॉरी, फ्रूट्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरह काम करती है, और वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अगर मार्केट में है, सब्स्टिट्यूट है, आपका के पास ऑल्टरनेटिव है, ऑप्शंस हैं अगर मार्केट में, तब तो प्राइस में अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड तेजी से कम होगा, नहीं तो डिमांड भी कम नहीं होगा उतनी तेजी से, क्योंकि लोग एकदम तो भूखा नहीं रहेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे डिमांड कर्व काम करता है। ये केवल ऐसा नहीं कि प्राइस कम किया और डिमांड सीधे मूव हो जाएगा, नहीं। हाउस होल्ड की इनकम क्या है, लोगों का बाइंग पावर क्या है, हो सकता है बाइंग पावर लोगों का बहुत ज्यादा हो, बहुत पैसे हो, तो थोड़ा बहुत डॉलर का प्राइस ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें स्टोरी है इसमें, बहुत सारी एजम्पशंस होती हैं, और उस पर भी डिपेंड करता है कि कैसे ये ग्राफ पे डिमांड ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, ये सारी इस पे भी डिपेंड करता है। अब इसमें दो जो इसे टर्म निकल के आती हैं, एक्चुअली मैंने ब्रीफली मेंशन किया है अभी भी, कि इनकम इफेक्ट भी होता है, डिमांड कर्व को इम्पैक्ट करता है। दो और इफेक्ट होती हैं जो कि इनकम, जो कि डिमांड कर्व को इफेक्ट करती हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत सिंप्लीफाई कर दिए हैं, बहुत इसको सीधा सरल बनाने के लिए हम लोग बोल दिए कि ठीक है, प्राइस कम किया, डिमांड बढ़ गया, बट इसमें और भी फैक्टर्स काम करती हैं, जो कि मैंने कहा कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है कि नहीं, और दूसरा है कि लोगों का इनकम कैसा है। आपने प्राइस कम मतलब कि $1 बढ़ा दिया, मान लीजिए 5 to 6 कर दिया, अब मान लीजिए कि वो बहुत रिच कोई कंट्री है, शहर है, सब मिलियनियर बड़े हैं, सारे करोड़पति लोग हैं, तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिमांड में, डिमांड उनका वैसा ही रहेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इनकम जो है भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये देखने के लिए कि हम प्राइस कम करते हैं या ज्यादा करते हैं तो डिमांड पे क्या असर आएगा। जरूरी नहीं कि सारे लोग एक ही तरह से रिएक्ट करें प्राइस ज्यादा होने से। कुछ लोग होंगे कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, जस्ट कुछ डॉलर एक्स्ट्रा दे देना है, कोई बात नहीं। कहीं कहीं हो सकता है कि लोग सड़क पे आ जाएंगे, प्रोटेस्ट करने लगेंगे, धरना देने लगेंगे, प्राइस बढ़ा दिया। तो क्या होता है इस पे, क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि डिमांड कर्व तो हमने बना दिया बहुत सिंपल, अज्यूम करके कि सब लोग एक ही तरह के हैं, सब लोगों का रिएक्शन एक ही होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इनकम पे डिपेंड करता है कि अगर कहीं पे इनकम ज्यादा है तो हो सकता है अलग तरह से रिएक्शन है, कहीं इनकम कम है तो रिएक्शन अलग होगा, तो इसको कहते हैं इनकम इफेक्ट, ठीक है। वैसे ही जो मैंने कहा कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करता है, मार्केट में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, अगर गेहूं अवेलेबल है उतने ही सप्लाई में, तो चावल महंगा आप करेंगे, लोग गेहूं लेने लगेंगे, गेहूं महंगा करेंगे कुछ और लेने लगेंगे, सारे अनाज महंगा कर देंगे, लोग फ्रूट खाने लगेंगे, तो
सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। तो उसको कहते हैं हमारा डिमांड कर्व काम करेगा कि नहीं करेगा, प्राइस बढ़ाने पे हमारा डिमांड कम होगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि मार्केट में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है कि नहीं। गेहूं है कि नहीं, चावल अगर महंगा हुआ तो, और अगर गेहूं है, चावल महंगा हो गया तो लोग गेहूं खाना शुरू करेंगे ज्यादा, आई मीन रोटी ज्यादा खाएंगे, गेहूं तो डायरेक्ट नहीं खाएंगे, रोटी ज्यादा खाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है कि मार्केट में सब्स्टिट्यूट है क्या, अगर सब्स्टिट्यूट है तो हो सकता है जो ये क्वांटिटी का जो ऊपर और नीचे ग्राफ जा रहा है वो तेजी से आएगा जाएगा। सब्स्टिट्यूट नहीं है तो हो सकता है उतना तेजी से हमारा क्वांटिटी कम ना हो प्राइस बढ़ाने पे भी। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे डिमांड कर्व को समझने के लिए। उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है ना, इसलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं उसको। ठीक है। जैसे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं वैसे ही कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर आप एक का डिमांड बढ़ाते हैं तो दूसरे का भी डिमांड बढ़ेगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो साथ साथ चलते हैं, जिनका डिमांड और सप्लाई। ठीक है। जस्ट लाइक सॉक्स एंड शूज। ठीक है। इनका डिमांड जैसे साथ साथ चलता है ज्यादातर केसेस में। कोई क्वेश्चन यहां तक? सो हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स का। जैसे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट रहता है वो रिप्लेस करता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं करता है, वो एक दूसरे के साथ चलता है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में कंपटीशन नहीं होता है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एक दूसरे को हेल्प करता है। मतलब एक खराब का डिमांड खराब हुआ, उसका भी डिमांड खराब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि कप्स एंड सॉसर्स हैं, ब्रेड एंड बटर है, ये दोनों नॉर्मली साथ में खरीदी जाती हैं। ठीक है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि ब्रेड का प्राइस बढ़ा, बटर का तो उसे ब्रेड का डिमांड कम हुआ तो बटर का भी डिमांड कम होने लगता है। ठीक है। क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलते हैं हमेशा। तो एक क्वेश्चन है, what might be the effect of an increase in the ownership of domestic deep freezer on the demand for perishable food products? ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे जो डीप फ्रीजर होते हैं जिसमें सब सामान ठंडा रखा जाता है, ठीक है, बड़े बड़े ये मशीन्स होती हैं, वहां पे सामान को ठंडा करके प्रिजर्व करने के लिए डीप फ्रीजिंग की जाती है, उसका अगर नंबर बढ़ जाता है, कहीं पे डीप फ्रीजर का सप्लाई ज्यादा हुआ या किसी भी तरह से सस्ता हुआ, ज्यादा लोग डीप फ्रीजर लिए हैं, तो क्या होगा, पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट के डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, मतलब कि जो चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं उनका डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, ज्यादा होगा कम होगा। ठीक है। जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि डीप फ्रीजर क्या करता है, चीजों को प्रोटेक्ट करता है, फ्रीज करता है, ठंडा रखता है, ज्यादा दिन तक चलाता है। अगर आपके अगर आपके एरिया में, अगर शहर में डीप फ्रीजर का सेल ज्यादा हो रहा है, उसका प्राइस कम हुआ है, तो जाहिर सी बात है लोग ज्यादा से ज्यादा डीप फ्रीजर खरीदेंगे। जब डीप फ्रीजर ज्यादा खरीदेंगे तो क्या होगा, वो पेरिशेबल फूड्स, जो कि चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, उनका डिमांड बढ़ने लगेगा, क्योंकि वो लोग लेंगे और डीप फ्रीजर में डाल के छोड़ देंगे। तो डीप फ्रीजर और पेरिशेबल गुड्स कैसा रहा आपस में, उनका क्या रिलेशनशिप है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के, कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। हम लोग जो अभी पढ़ा था कि प्रोडक्ट्स कॉम्प्लीमेंट्स भी करते हैं एक दूसरे को, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हुए, एक का डिमांड बढ़ेगा दूसरे का भी बढ़ेगा साथ साथ। ओके, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम लोग ने जो इलास्टिसिटी की बात की थी उस समय अर्लियर, वो एक्चुअली यहाँ पे है। ठीक है। सो इलास्टिसिटी जो मैंने कहा था पहले कि
ये दिखाता है कि अगर हम एक चीज का प्राइस कम करते हैं तो कितनी तेजी से डिमांड बढ़ेगा, या प्राइस बढ़ा देते हैं तो कितनी तेजी से डिमांड कम होगा। ये डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट के इलास्टिसिटी पे। और इलास्टिसिटी क्या है? वो ये मेजर करता है कि लोग जो हैं फ्लेक्सिबल हैं क्या डिमांड बढ़ाने में या कम करने में। लोग फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डिमांड उसका कम करते हैं या बढ़ाते हैं प्राइस के साथ। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, राइट? अगर हम फ्रूट का प्राइस बढ़ा दें, डबल कर दें, तो हो सकता है कि उसका डिमांड थोड़ा कम हो जाए। पूरा आधा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग फिर भी खा रहे हैं वो खाएंगे। प्राइस डबल करने से डिमांड आधा तो नहीं होगा एग्जैक्टली, थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम जो जरूरी दवाएं हैं उनका डिमांड उनका प्राइस हम डबल कर दें, तो क्या उनका डिमांड उतना ही कुछ ज़्यादा कम होगा? नहीं होगा, हार्डली कोई असर पड़ेगा। वो दवाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दवाएं हैं, जान बचाने की दवाएं हैं, उसको आज प्राइस डबल भी कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो वो क्या है? इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक मतलब रिजिड है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी डिमांड पे। ठीक है, तो यही है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब, कि आप प्राइस बढ़ाते हैं तो डिमांड पे क्या असर पड़ता है। अगर पूरा का पूरा उतना ही असर पड़ा, उसी रेशियो से अगर डिमांड बढ़ गया, जितने जितने परसेंट से आप प्राइस कम किए थे, उसको कहा जाता है फुली इलास्टिक। अगर आप प्राइस बढ़ाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा डिमांड में, लाइफ सेविंग ड्रग्स है जैसे जीवन रक्षक दवाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी डिमांड पे, उसको कहते हैं इन इलास्टिक। ठीक है, या थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत डिमांड कम हो जाएगा प्राइस बढ़ाने पे। ठीक है, तो उसको कहेंगे पार्टली इलास्टिक, पार्टली इन इलास्टिक, ये सब कहेंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? यहाँ पे एक रेशियो आता है, इसको कहा जाता है, हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो समझ लिया। जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ लिया तो उसका एक कोएफिशिएंट आता है, मतलब कि एक उसका एक फैक्टर होता है कि कितने तेजी से हमारा डिमांड पे असर पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा ना कि डिमांड जरूरी नहीं कि उसी रेशियो से कम या बेशी हो, राइट? मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे लोकेलिटी में दूध का प्राइस जो है 50% बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब इसका असर पड़ेगा, लोग दूध जरूर कम खरीदेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि 50 रुपए था, 50 रुपए को 75 रुपए कर दिया गया, और मैं 2 किलो दूध मंगा रहा था। ठीक है, 50 रुपए पे, तो अब प्राइस बढ़ी कितना? 50% से। तो क्या मैं 50% डिमांड कम कर दूंगा? नहीं, मैं 2 किलो से डायरेक्टली 1 kg नहीं करूंगा, मैं 2 किलो से हो सकता है 1.25 किलो कर दूं, 1.5 किलो कर दूं। ठीक है, तो क्या हुआ? मैं ना इलास्टिक हूं पूरी तरह से, ना पूरी तरह से इन इलास्टिक हूं, मैं पार्टली इलास्टिक हूं। ठीक है, वो पार्टली जो वर्ड है, पार्टली इलास्टिक, वो कैसे मालूम होगा? वो जो पार्ट होता है ना, कैसे कैलकुलेट करेंगे कितने पार्ट में मैं इलास्टिक हूँ, कितना परसेंटेज मैं इलास्टिक हूँ, इसको कैलकुलेट करने के लिए ही ये वर्ड है द कोएफिशिएंट ऑफ पीईडी। मतलब पीईडी क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो हमारा इलास्टिसिटी है उसको मेजर करने का एक फैक्टर होता है। जैसे मैंने अभी कहा, हमारे एरिया में दूध के प्राइस को 50 रुपए से 75 रुपए कर दिया गया, तो क्या मैं 2 लीटर जो दूध लेता था वो 1 लीटर लूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं 1.5 लीटर कर सकता हूँ, या 1.75 लीटर कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो डिमांड फैक्टर है वो उसी रेशियो में काम नहीं कर रहा है, वो 0.4 हो गया है। अगर आप 100 रुपया बढ़ाते हैं तो मैं डिमांड कम करूंगा 40 यूनिट, 0.4 ओनली, क्योंकि मैं थोड़ा एडजस्ट करूंगा, पूरी तरह से मैं डिमांड कम नहीं कर दूंगा जितना आपने प्राइस बढ़ाया है, राइट? वो जो कितना मैं डिमांड कम करूंगा, कितना मैं डिमांड बढ़ाऊंगा आपके प्राइस कम करने से, या प्राइस बढ़ाने पे कितना डिमांड कम करूंगा मैं, ये जो फैक्टर होता है, इस फैक्टर को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ पीईडी। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, उसके लिए एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा वर्ड है, कोएफिशिएंट ऑफ पीईडी, दैट्स इट। ठीक है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? उसको कैलकुलेट किया जाता है
ये लेकर के कि, और बहुत बहुत एक आसान सा है चीज समझने के लिए कि मेरा इस एग्जांपल में कितना प्राइस बढ़ा था मिल्क का? 50 से 75 किया गया था ना? कितना बढ़ा? 50%, राइट? 50% प्राइस बढ़ गया। वेरी गुड। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड मतलब मैंने कितना दूध का कंजम्पशन कम कर दिया, ठीक है? तो कितना कम किया मैंने कंजम्पशन? मान लेते हैं 2 लीटर था, 2 लीटर को मैंने कर दिया 1 लीटर 75, 1.75, ठीक है? तो कितना कम हुआ मेरा कंजम्पशन? 12.5% हुआ, राइट? अगर 250 ml को 2 लीटर पर देखिएगा तो ये हुआ 12.5%, ठीक है? तो कितना परसेंट मैंने कम किया अपना कंजम्पशन? प्लीज बताओ, कितना परसेंट कम किया मैंने अपना कंजम्पशन? 12.5। सो 12.5 कम किया मैंने कंजम्पशन अपना। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना था? 50%। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने प्राइस बढ़ाया 50% तो मेरा रिस्पॉन्स कितना था? ओनली एंड ओनली 12.5%। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 50% अगर आप प्राइस बढ़ाइएगा तो मैं केवल 12.5% ही डिमांड कम करूंगा। या उसी को डबल कर देते हैं, अगर आप 100% प्राइस बढ़ा देते हैं तो मैं डिमांड कितना कम करूंगा? 25%, राइट? समझ आ रहा है अभी तक? यहां तक समझ में आया? हाँ भैया। श्योर? फिर से बताता हूँ, प्राइस 50 से 75 गया, मेरा डिमांड 2 लीटर से 1.75 हो गया। प्राइस 50 से 75 जाने का मतलब हुआ 50% इंक्रीज। मेरा डिमांड जो है मिल्क का 1.2 लीटर से 1.75 हो गया, मतलब रिडक्शन कितना हुआ? 12.5% का। तो 12.5 डिवाइड बाई 50% कितना होता है? 25%, ठीक है? तो कोएफिशिएंट ऑफ पीईडी कितना हुआ मेरा? 25%। ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? ये भैया ये एग्जाम्पल से थोड़ा बता देते, उससे थोड़ा इजी हो जाता। हाँ, मैं एग्जांपल इसका बताऊंगा। हमारे पास न्यूमेरिकल भी है और मैं इसको एक्सेल पे कैलकुलेट करके बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में। अभी तो ज्यादा हो जाएगा कि आज कंप्लीट कर दूं। व्हाट यू वांट? क्योंकि इतना आप अभी कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए, फिर एक पूरा क्या है कि प्रैक्टिस भी करा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? जैसे कि नहीं तो 12, फिर नेक्स्ट क्लास ही ठीक है भैया। हाँ, सही बोल रहे हैं आप। क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है इसके साथ साथ एक एक्सेल में करके दिखा दूंगा मैं एक दो एग्जांपल, ठीक है? कैलकुलेट करके, बिकॉज ये एक बार में उतना बहुत बढ़िया से ग्रास्प नहीं होगा, तो इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से रिवाइज भी कर देंगे और उसके बाद रिपीट करेंगे तो फिर से याददाश्त में अच्छा जाएगा, ठीक है? बट ये समझ लो कि अभी इसको कैसे करते हैं कैलकुलेट। हमारा डिमांड में कितना चेंज हुआ और प्राइस में कितना चेंज हुआ, दोनों कैलकुलेट करके डिमांड में चेंज को प्राइस में चेंज से डिवाइड कर दो, बस, ठीक है? नहीं तो एक मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाई देता हूँ। प्राइस ऑफ ए गुड इज 1.2 पर यूनिट, ठीक है? एक क्यों नहीं मैं एक्सेल ओपन कर लूं? मेरा एक्सेल वर्कबुक दिख रहा है? एक्सेल सबको एक्सेल दिख रहा है? हाँ भैया। ओके,
ये एक सिंपल एग्जांपल देख लीजिए पहले, ये इससे समझ में आ जाएगा बहुत। ये है प्राइस, ठीक है, कमोडिटी है मिल्क। प्राइस, फर्स्ट प्राइस क्या था? 50। सेकंड प्राइस क्या हुआ? 75। डिमांड 2 लीटर, यहाँ पे डिमांड 1.75 लीटर, ठीक है। रिडक्शन कितना का हुआ? 0.25 लीटर, ठीक है। या ये लीटर हटा ही देते हैं, कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। और ठीक है, इसको हटा के यहाँ कर देते हैं चेंज। एक्चुअली चेंज क्या है मालूम है? नेगेटिव है चेंज। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं भैया। ओके, यहाँ पे चेंज कितना रहा? ऐसे ही ये भी देखते हैं, 25 रुपए का। पॉजिटिव चेंज मतलब कि प्राइस ऊपर गया, और नेगेटिव चेंज मतलब डिमांड नीचे गया। तो हमारा पीडी कोएफिशिएंट कितना होगा? कोएफिशिएंट ऑफ पीईडी मालूम है? चेंज इन, अब आप बताइए क्या लिखूं मैं यहाँ पे? मैं क्या लिखूं? कोएफिशिएंट ऑफ पीईडी कैलकुलेट करना है मुझे। मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? चेंज इन डिमांड, ओके, चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन प्राइस, total change in demand equals to 25 and और ये याद रखिएगा, sorry, ये price, याद sorry, रखिएगा price is 25. कि ये जो है परसेंट में देना है, ठीक है। ये जो है परसेंटेज में देना है। इन परसेंट चेंज इन डिमांड डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस, और इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अभी तक सब साथ में हैं हम लोग, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। एक काम और कर लेते हैं, इसको परसेंटेज में यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंटेज में। कैसे आता है परसेंटेज में चेंज? 25 अपॉन 50, इसको परसेंट का साइन लगा देते हैं यहाँ पे, 50%। इसको भी वैसे ही 0.25 डिवाइड बाई दिस, इसको भी परसेंटेज में लगा देते हैं। ये राउंडिंग कर दिया है। अभी तक सब हम लोग साथ हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे 50% चेंज हुआ ना प्राइस में, प्राइस ऊपर गया मिल्क का। यहाँ पे कितना चेंज हुआ? डिमांड 12.5% ओनली। यहाँ हमारा इन परसेंटेज फॉर्मूला दिया हुआ है ना, चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन प्राइस दिया हुआ है ना। तो मुझे क्या करना है? बराबर साइन लगाना है, चेंज इन डिमांड पहले, राइट, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, राइट, चेंज इन प्राइस। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि सब कुछ परसेंटेज में ऑलरेडी है, ठीक है। क्या दिख रहा है? मैं जो कहा था ना 25% होगा, ये क्या दिख रहा है मालूम है? 25% आया ना, कोएफिशिएंट लिख देते हैं और यहाँ पे अच्छे से दिखेगा, कोएफिशिएंट ऑफ पीईडी मतलब 25% नेगेटिव। इसका मतलब ये है, पहले तो साइन समझते हैं। नेगेटिव 25% का ये मतलब हुआ कि आपका डिमांड और प्राइस एक साथ नहीं जा रहा है, उल्टा जा रहा है ना। नेगेटिव चीज जब होता है तो उसका क्या मतलब होता है? नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? उल्टा जा रहा है चीज, राइट। तो जब ये इक्वेशन दिखा रहा है नेगेटिव 25%, इसका मतलब
हमारा डिमांड कम हो रहा है प्राइस के ऊपर जाने से, या प्राइस नीचे जाएगा तो डिमांड बेसिकली और ऊपर जाएगा, और जब प्राइस नीचे जाएगा, सॉरी, जब प्राइस नीचे जाएगा तो डिमांड ऊपर जाएगा, जब प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड नीचे जाएगा। नेगेटिव साइन का ये मतलब होता है, ये उल्टा दिखाता है कि ये एक दूसरे के उल्टे चल रहा है। ठीक है, एक चीज। दूसरा चीज क्या दिखाया, 25% हमारा कोएफिशिएंट ऑफ पीईडी है। कोएफिशिएंट ऑफ पीईडी 25% होने का मतलब ये होता है कि आप डिमांड, आप प्राइस अगर बढ़ाते हैं 100% से, तो डिमांड मेरा बढ़ेगा कितने से, केवल 25%। 25% ये दिखाता है कि आप जितने बार भी 100% प्राइस बढ़ाइएगा तो हमारा डिमांड केवल सॉरी डिमांड हमारा कम होगा केवल 25% से ही, पूरे 100% से नहीं होगा कम, क्योंकि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ पीईडी 25% ही है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नहीं भैया। एक और एग्जांपल ले लें क्या? ये समझ में आ गया पूरा तरीके से? चलते हैं, एक इसको दवा बना देते हैं, मेडिसिन। ठीक है, प्राइस 50 था, यहाँ पे कितना हो गया 100। डिमांड 2 टैबलेट का था डेली, यहाँ पे कितना है 2 ही रहेगा ना। दवा तो कोई कम करेगा नहीं जल्दी। चेंज कितना हुआ यहाँ पे, प्राइस 50, परसेंटेज चेंज कितना हो गया, 100% चेंज कर दिया ना, प्राइस मैंने डबल कर दिया, 50 यहाँ 100 कर दिया मैंने, क्या ना। डिमांड 2 टैबलेट का था डेली, 2 टैबलेट ही रहा, चेंज कितना हुआ 0, परसेंटेज चेंज कितना हुआ 0। कोएफिशिएंट ऑफ पीडी निकालना है ना, चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन प्राइस। ओके, फॉर्मूला क्या कह रहा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ले लो, डिवाइड कर दो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। ठीक है, वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ पीईडी हुआ, समझने के लिए बस। ठीक है, अगर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ पीईडी 0% है, इसका मतलब ये है कि आप प्राइस चाहे कितना भी चेंज करो, मेरा डिमांड चेंज नहीं होने वाला है। वो ये दिखाता है, कोएफिशिएंट ऑफ पीईडी क्या बताता है मालूम है, हमारा डिमांड में कितना चेंज होगा, इतना बस याद रख लो, हमारे डिमांड में कितना चेंज होगा। क्या हमारा डिमांड बदलने वाला है प्राइस में बदलने से? प्राइस तो हम जानते हैं ना कि हर बार बदलता है, हर कंट्री में प्राइस ऊपर जा रहा है, हर चीजों का इन्फ्लेशन है। जब इन्फ्लेशन है, प्राइस बदल रहा है, तो बस हमको इतना याद रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ पीईडी हमको डिमांड में चेंज पूछता है कि डिमांड में कितना चेंज होगा अगर मैंने प्राइस बढ़ाया तो 100%। तो कोएफिशिएंट ऑफ पीईडी कहता है कि यहाँ पे मेडिसिन के लिए 0%, कोई चेंज नहीं होगा डिमांड में। आप प्राइस 100% में बढ़ाएगा तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है ये मेडिसिन नहीं है, विटामिन है। ठीक है, ये विटामिन है। ये मैं पहले 7 टैबलेट लेता था वीक में, अब क्या कितने ले रहा हूँ मानो, 5 टैबलेट्स मल्टीविटामिन का लेता हूँ बस। 2 टैबलेट मैंने कम कर दिए। ठीक है, खुश? कितना चेंज हुआ मेरे कंजम्पशन में, कम हुआ, 2 टैबलेट मैंने कम किए ना 7 में से, 28% कम हुआ मेरा इनटेक। ठीक है, प्राइस कितना था 50 की जहां 100 कर दिया, चेंज 100% हो गया, डबल हो गया है प्राइस ना 100%। मेरा टैबलेट कितना कम हुआ लेना, 28% कम कर दिया मैंने टैबलेट लेने। ये मल्टीविटामिन था, कम कर सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा पीडी कितना हुआ 28.57, मतलब कि आप जितना अगर 100% प्राइस बढ़ाइएगा तो मैं अपना डिमांड 28% कम कर दूंगा। यही है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ पीईडी। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? सोनिया, एनी क्वेश्चन? अभिषेक, एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, सो अब हम लोग इसके आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, और नई टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो
let me know.